taking everyone's loveful remembrances. सभी की प्रेम भरी यादें लेकर When Baba called me, I went to जब बाबा ने मुझे Baba बुलाया, to offer bhog. मैं भोग लेकर बाबा को ऑफर करने के लिए Baba गई। welcomed each child, every बाबा ने child. सभी को, हर एक बच्चे को Hello MHK, WhatsApp audio. Baba was giving very, very loveful drishti. का वेलकम किया और बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी। Lot of love to each child. बाबा ने बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया हर एक बच्चे को। Baba said बाबा ने कहा, that don't think efforts are difficult ऐसे न सोचे because कि Baba said पुरुषार्थ बहुत मुश्किल है, father cannot give anything difficult to children, क्योंकि बाबा but पिता है children जो make it बच्चों को difficult कभी for कुछ भी themselves. मुश्किल नहीं देंगे, लेकिन बच्चे ही उसे अपने So आप Baba मुश्किल said बना two देते things हैं। we should always remember. दो चीज हैं जो हमें हमेशा याद रखनी One है। is that I belong to Baba. एक कि मैं बाबा की हूँ, Always remember that. हमेशा ये याद रखें। And secondly, whatever I और am doing, दूसरा कि मैं जो भी कर रही हूँ, at every step, in every thought, always think हर this is संकल्प, Baba's हर task. कदम पर हमेशा ये सोचें कि ये बाबा This is का कार्य Baba's है, ये बाबा Shrimat. का कार्य है, ये That बाबा की Baba श्रीमत है should emerge more often in your कि thoughts. बाबा शब्द हमारे Because संकल्पों में remembrance of Baba बहुत ज्यादातर इमर्ज होना चाहिए, while doing actions, क्योंकि हर कार्य करते हुए बाबा का है। even if you are doing Lokik jobs, चाहे अगर अगर आप लौकिक कार्य भी everything you करते do, हो या कुछ भी कार्य कर रहे it's हो, according to Baba's Shrimat. ये बाबा की श्रीमत अनुसार है। So Baba said, then this तो बाबा ने कहा the self, any कि kind ये of concern, I belong to Baba. कि अगर अपने बारे में भी कोई Baba has adopted हमें चिंता होती है तो मैं बाबा की Baba's हूँ, child. Keep मैं saying that. बाबा की बच्ची हूँ, ऐसे कहते And रहें। secondly, for the task. और दूसरा, And third, जो भी Baba कार्य said के लिए, also, और तीसरा बाबा whichever ने good कहा or virtue is required कि जो भी शक्ति या गुण Baba, की आवश्यकता ocean of है, love. कि बाबा Baba, you are Karan आप प्रेम के Karavanhar. सागर हो, आप Baba, करण you are the one करावनहार who will हो, remove आप obstacles, whatever. आप Just keep विघ्न saying. विनाशक हो। At this time, Baba said, कि बाबा ने faith कहा and कि remembrance इस समय are very important. हिम्मत और याद दोनों बहुत Please बहुत correct. इम्पोर्टेंट है, कि Keep कभी भी remembering हिम्मत Baba, नहीं खोना, हमेशा बाबा को याद and Baba will make it happen. याद करें और बाबा ये It's not करा only लेंगे। courage will help, but remembrance is important. And हिम्मत simple way of हिम्मत remembrance ही is सिर्फ मदद नहीं करेगी, लेकिन हिम्मत के that साथ साथ belong to याद Baba. भी मदद करेगी कि Whatever मैं I'm बाबा doing की हूँ, is Baba's मैं task. जो भी कर रही हूँ ये And बाबा का third is कार्य है। virtues and powers और which तीसरा, required. हर गुण और And Baba, शक्तियाँ जिनकी I offered जरूर bhog है। to Baba. और फिर मैंने Baba बाबा with को भोग lot of ऑफर love किया। accepted bhog. बाबा ने बहुत प्रेम से Then भोग Baba said, स्वीकार किया you और should बाबा ने love कहा those children more than they know themselves. कि बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को, बच्चे खुद को जानते हैं उससे भी ज्यादा बाबा Because बच्चों को Baba knows जानते हैं, not only your क्योंकि बाबा present को but your पता future. है, बाबा को आपके And वर्तमान के Baba साथ knows साथ your आपका beginning, भविष्य middle भी and पता end. है, आपका आदि मध्य अंत भी So बाबा को Baba will पता है। fulfill तो बाबा needs of everyone. सभी बच्चों की जरूरत को पूरी करेंगे। Baba is taking care of everything बाबा हर एक because Baba knows बात की ध्यान how दे रहे much हैं, क्योंकि strength बाबा को anyone पता has है कि to बच्चों के अंदर absorb कितनी your शक्ति है, child. बच्चों की क्या So look at आवश्यकता है। Baba. Baba, you know. तो बाबा को देखें, बाबा को पता है। So I said, Baba, we तो just मैंने said कहा you should बाबा, tell Baba. हम जा So ऐसे Baba कहते हैं said, कि yes, हमें I बाबा know, को कहना चाहिए। but you should also tell तो him. बाबा ने कहा कि बाबा को पता है, But लेकिन have आपको बाबा को भी 100% कहना है, trust in Baba लेकिन and पूरा don't lose 100% बाबा enthusiasm. पर निश्चय हो और अपना उमंग उत्साह कभी भी Some children, when there कम are ना करें। few difficulties, then they lose.
कई बच्चे हैं जिनमें कभी कभी मुश्किलात आती हैं तो वो हिम्मत निश्चय गवा लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आपको फरिश्ते की तरह उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाते रहना है। बाबा ने सभी को दृष्टि दी, बहुत बहुत प्यार किया और मैं यहाँ आ गई। सबकी याद और प्यार सभी के लिए मैं इधर आ गई। ओम शांति, ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा जानते हैं कि नास्तिक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का वर्तज्ञ प्रमाण दिया, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन वासिक खंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गई, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गई। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव, जैसे आप लोगों का अनुभव है। ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। ये है सेवा का साधन, फास्ट सेवा। क्या ब्रह्मा बाप ने कोर्स कराया आपको? कोर्स किया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो, जो आप सबका अनुभवी देखा और विदा हो गए। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी
Om Shanti. Inculcate the virtue of sweetness and love in your life, and all other ओम virtues शांति। easily come. Easy natured. Those who always remain colored सरल चित्त with the color of जो spiritual रूहानियत के रंग and में who सदा live रंगे हुए with the रहते हैं, virtue of उनमें sweetness. मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। Those who do not जो know अपनी व the दूसरों की बीती situations को of नहीं oneself देखते, वह and सरल चित हो others जाते हैं। become सरल चित easy natured. आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल Easy होता natured है। souls उनके have the नयनों से, natural मुख से virtue और चलन of से sweetness. मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने Sweetness में is आती practically है। visible in their eyes, on their face, and in their behavior. Om Shanti. ओम शांति। Welcome to Bhakti Parivar. So today we'll be starting our day 1 for month of February. So inculcate the virtue of sweetness and love in your life, and all other virtues will easily come. So today's topic, easy natured. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, happy Sadguruvar. ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार सभी को। Baba says, I know you more than you know yourself. बाबा ने कहा कि मैं आपको I remember that आपसे ज्यादा when जानता I हूँ। used to pray in Path of Bhakti. मुझे याद है कि भक्ति मार्ग Never में asked for जब anything. मैं पूजा I said, करती थी maybe तो he मैं wants to कभी give भी me more, कुछ नहीं मांगती थी। or maybe my मुझे life लगता था someday. कि He knows me. शायद बाबा मुझे भगवान मुझे और Then I ज्यादा दे, know what I या need. भगवान को पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो And मैं I हमेशा always ऐसे said that सोचती थी many, भक्ति many मार्ग में। situations और and बाबा ने tests कहा कि come. बहुत सारे परीक्षाएं आती है, Don't बहुत lose टेस्ट आते courage. हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़ना। Baba is watching us, बाबा हमें देख रहे हैं and he knows what our और बाबा को needs. पता है कि हमारी क्या जरूरत है। बाबा देख रहे हैं। So to keep our chitta, in English we say तो attitude. हमारा जैसे चित्त को हम इंग्लिश में एटीट्यूड ऐसे कहते हैं। It's like चित्त something deeply. जैसे Yeah. कुछ गहराई में हमने कुछ पकड़ कर रखा है अपने चित्त पर। हम कहते हैं ना कि कुछ गहराई में चित्त पे कुछ And whatever जैसे we पकड़ के hold, रखा है, then और our thoughts are अगर also हम connected उसे with it. पकड़ के रखते हैं तो हमारे संकल्प उसके साथ जुड़ जाते हैं। We all have different habits, but one of हम sanskar सभी maybe को अलग अलग always आदतें look हैं, around. लेकिन हमारे सभी के एक संस्कार है कि हम सब आसपास देखते हैं। And I'm holding that I don't get that much as I am. और मैं deserve. Where अगर ऐसा achieving पकड़ कर something रखती or हूँ doing कि मुझे वो नहीं मिलता So है if जो that is your मैं holding, जिसके लायक हूँ, you अर्थात will मैंने वो always पकड़ seek के things रखा हुआ है, from that. तो So हम perspective. हमेशा वही So you दृष्टिकोण will से always चीजों को feel only देखेंगे love, और love, हमें love, हमेशा fulfillment. ऐसे And it प्रेम may not be true. और या स्वीकार किया है या So हमें because प्रेम you दिया are है, holding ऐसा something, हमें महसूस होगा। ये क्यों? you will not क्योंकि अगर experiencing हमने what कुछ you पकड़ receive. के रखा है तो हमें जो मिल रहा है हम उसका अनुभव नहीं Lot कर of पाते हैं। experience. हम Some सभी have को childhood कुछ friends ऐसे अनुभव and some होंगे have कि with brothers, जिन्हें sisters, पेरेंट्स को के हैं, जो 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 माता with पिता है, जिन्हें अपने बच्चों के sisters. साथ या कुछ ऐसे लौकिक में सबके ऐसे कुछ न कुछ I always अनुभव remember होंगे। my तो fortune. मुझे हमेशा याद है मेरे Take खुद my का fortune. भाग्य, और मुझे लगता है कि कोई भी मेरा But I भाग्य have ले to नहीं trust सकता, my fortune. लेकिन मुझे अपने भाग्य Yes, I पे am Baba's निश्चय lucky रखना child. है कि मैं बाबा की I am Baba's lovely child. लकी लकी बच्ची हूँ, लकी सितारे हूँ। So
तो जैसे आज बाबा ने कहा कि हिम्मत नहीं, लेकिन हिम्मत के साथ ही साथ याद हर वक्त, हर कदम कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ, जो सोच रही हूँ, बस बाबा को यूज करते रहें, शब्दों से नहीं लेकिन हमारे अपने दिल से, कि बाबा, हाँ बाबा आप करोगे, हाँ बाबा आप करोगे। जैसे दादी जान की हमेशा कहती थी ना, अगर उन्हें कहीं पे जाना भी होता था कि बाबा चलो साथ चले, बाबा चलो ऐसे करते हैं, क्योंकि उनकी एज या उनका जो देह शरीर के साथ उनकी जो भी एनर्जी थी, लेकिन वो इसी वजह से कर पाई क्योंकि वो हमेशा बाबा बाबा कहती रही। तो एक बहुत ही सरल तरीका है बाबा को याद रखना, ये स्मृति में रखना कि मैं श्रीमत फॉलो कर रही हूँ, ये बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा का है, ये टास्क मैं कर रही हूँ, ये बाबा का कार्य है। और बाबा की जो गुण है और शक्तियां हैं उसको सोचें। बाबा ने बहुत बहुत शक्तियां दी हैं और बाबा ने बहुत हमें वरदान भी दिए हैं, उसको यूज करें। हम सभी के पास बहुत सारे वरदान हैं, तो हमें उसे याद करने हैं। तो होमवर्क में तो एक एक शब्द का हम गहराई में जाके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे सरल चित्त, ये शब्द यूज हुआ है, सरल चित्त। सरल चित्त अर्थात जैसे बहुत ही सरल, एक कहते हैं ना कि एक सरल और कहते हैं ना निर्मल, जैसे कहते हैं निर्मल स्वभाव, क्योंकि चीजें जब काफी अगर कड़क होती हैं तो बहुत ही फिर उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, उसमें आ जाएंगे, उसमें ये होगा, तो बहुत सारी चीजें आपस में उलझ जाती है। तो मैं तो ये ऐसे सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कई कहते हैं कि नहीं ऐसा होगा, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कल के होमवर्क के लिए इस पर थोड़ा चिंतन करें कि यह है, बाबा ने कहा कि जो रूहानियत के रंग में, कल के लिए बाबा ने कहा कि जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं। तो कई लोग हैं वो बहुत लौकिक हैं, उनके शब्द, उनका जो हाव भाव होता है वो रूहानी नहीं होता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण स्वतः आ जाता है। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, वह सरल चित्त हो जाते हैं, वे सरल चित्त हो जाते हैं और खुद को भी और दूसरों को भी। तो वो सरल चित्त बन जाते हैं। सरल चित्त आत्मा उनके अंदर अपने आप ही मधुरता का गुण नेचुरल होता है। उनके नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है, नयनों से और मुख से। नयन, मुख और चलन तीनों में प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती हैं। जैसे कि अगर आपने जैसे कुछ सुना और आप अंदर मन से उसके बारे में सोचना शुरू करते हो, हर कोई इस तरह से ऐसे सोचते हैं, तो उसे ज्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो रूहानियत से
और बाबा की याद से obstacle can just remove. हमें But if you keep it ये taken सारे and विघ्न think निकल about it सकते all हैं। the लेकिन time, अगर हम सोचते रहें, हर वक्त I उसके know बारे there's में ही effort, सोचते that's रहें, the effort is मैं समझती, मैं removing जानती sorrow. हूँ कि ये इसमें मेहनत है, लेकिन ये सब सरल हो सकता है बाबा की याद के Many साथ। signals for तो tomorrow. बाबा ने कल के लिए Bhog बहुत सारे also इशारे said, दिए हैं। भोग में भी बाबा ने बहुत अच्छा always मैसेज remember दिया Baba. है कि हमेशा Easily, बाबा को याद not करें, ever said, सहजता से, point of light and ज्यादा concentrate डिफिकल्ट and नहीं then कि कंसंट्रेट करें, say, oh, I पॉइंट can't को remember देखें। Baba. तो मैं कहूंगी तो Remembrance बाबा is को not याद नहीं कर concentration सकते। on a point of light. तो याद Baba ये said, नहीं है कि I am a एकाग्रता star, you are also a star. या लाइट को देखना, बस मैं बिंदी हूँ बाबा और आप भी बिंदी हैं। Invocation of Baba is through Baba's virtues. बाबा को याद Not as करना, your बाबा point of के light गुण will से, come. बाबा की शक्तियों से, Yeah, mother will come, father will come, है ना, Sadguru will कि come. माता आओ, पिता आओ, सदगुरु आओ, करण करावनहार आओ। And बाबा those को stars उनकी विशेषता से याद only करो, this बाबा को moment. बुलाओ, उनके Step स्वरूप into से that बाबा को place याद even करो। so that तो I इसीलिए know बाबा का I'm परिचय Sadguru, हमें दिया I'm गया Baba, है Baba ताकि is हम also point of बाबा light. को याद करें कि But मैं someday आत्मा many बिंदु will be समान suffering हूँ। by saying, oh, तो I couldn't connect with कई Baba. कई लोग काफी We दुखी हो already जाते have हैं कि अरे हम connection. बाबा के We साथ only have कनेक्ट to नहीं हो turn पाए, on switch. कि हमारा It's ऑलरेडी already बाबा के साथ connection with कनेक्शन है, Baba. हमें सिर्फ वो स्विच We make connection every को day, टर्न ऑन but we करना turn है। on switch. तो Om लेकिन जैसे Shanti अपने घर में Om ही हम लोग Shanti. हर रोज थोड़ी ना कनेक्शन बनाते Baba हैं, है puts ना, Simriti तो into the कनेक्शन तो switch. हमेशा रहता है, हमें सिर्फ स्विच Puts टर्न ऑन Baba करना है। in any way. बाबा को याद करें, कोई भी प्रकार It से doesn't बाबा matter को याद what. करें, कोई भी प्रकार से। Just with love. Baba, you are बस really बाबा को pushing my बहुत love. बहुत प्रेम से याद करें कि बाबा It will आप reach प्रेम के Baba. सागर हैं, बाबा को Yes. पहुंचेंगी, वो याद पहुंचेंगी। Okay, so make ठीक everything है, very तो simple, very सब कुछ easy, बहुत सरल, इजी, but सहज बनाएं। easy but not lazy. Right? इजी बनाना है लेकिन लेजी नहीं बनना है। ठीक है, Om Shanti. ओम शांति। Mhm. Om Shanti Didi. Om Shanti. ओम शांति दीदी, ओम So, शांति, and Om Shanti, my dear family, my ओम angel शांति। avyakt parivar. एंजल अव्यक्ति परिवार, आपको भी So, ओम Mohini Didi, शांति। are you leaving tomorrow for India? On 9th. Okay. तो दीदी आप 9th को we जा have रहे time. हो इंडिया के लिए, तो हमारे Yes, पास sir. अभी भी And then कुछ दिन most हैं। of us are in Madhuban too. तो हम Yes. सब भी मधुबन में ही रहेंगे, तो मैं आपको Thank you वहाँ so much मधुबन में for मिलूंगी। the definition. Saran Chit, is that what it? Yeah, Saran Chit. तो आपने जो सरल चित्त It is के लिए जो SRL. Saral. Oh, Saral. Okay. Like there is a name Sarla. Okay. Sarla is the name, same is Saral. Okay. Saral Chit. All right. Chit. सरल चित्त Attitude. मतलब इजी एटीट्यूड। And also combining that with what you were sharing with us तो about जैसे जो courage आपने and हम सब के belonging, साथ कहा, to उसके साथ Baba में से जोड़ रही थी कि and हिम्मत developing that और faith. याद, बाबा के साथ हिम्मत और Combining याद that, जोड़ने से निश्चय because भी बढ़ता है। how is it that an easy nature needs courage? तो And when you क्या have करने people से who are हमारा speaking जो that are coming सरल from a quiet स्वभाव place, होता है still वो बढ़ता place. है। And the image that comes to mind तो Mohini जैसे Didi, is a metaphor where let's say a bird comes to your window. तो मैं एक जैसे कि आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे कोई एक पक्षी है जो हमारी जैसे खिड़की पर आता है, और वो जैसे पक्षी को जैसे ऐसे ऐसे डर सा लगता है जैसे वो खिड़की पर आता है। तो जैसे मैं अगर किसी के पास जाती हूँ तो किसी को एकदम से डर भी लगता है,
तो serenity in ये जो approaching a संकल्प small है कि bird बहुत that ही wouldn't सरल be चित्त afraid होना, of तो me. ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं सरल चित्त So होके that जैसे कि doesn't कोई build बर्ड के trust. पास जाती हूँ तो So I'm wondering उसको if you भी could share with us जैसे this एक ना relationship एक of फेथ आता of है, serenity उसे भी and बहुत अच्छा। trust तो क्या and how आप it makes us हिम्मत, easy निर्मल nurtured निर्मल and स्वभाव, हिम्मत, relationships निर्मलता with others. और उसके साथ सरल स्वभाव, इसके बारे में थोड़ा गहराई से बताएंगे। तो दीदी ने कहा कि हम सभी का जैसे एक स्वभाव है कि जो भी बात होती है हम उसको बहुत ही ज्यादा पेचीदी बना देते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हो सकता है कि हम सबको काफी इंफॉर्मेशन है, हमारी बुद्धि भी काफी अच्छी है, लेकिन मैं ज्यादातर क्या करती हूँ कि कुछ भी हमारे वाइब्रेशन में ना आए और हमारे वाइब्रेशन बहुत ही क्लीन रहे, सरल, अर्थात मैं कुछ भी पुरानी बातों को पकड़ कर नहीं बैठी हूँ, कोई भी परिस्थिति या मनुष्य या हमारे पास्ट के बारे में। तो अंदर से फिर हमारा बहुत सरल स्वभाव बनता है और हमें क्या करना है, क्या हमें बोलना है, उसका क्या परिणाम होगा और उससे हमें क्या प्राप्ति होगी। तो जब हम सरल रहते हैं तो उसमें शक्ति होती है। तो जैसे कहा कि हमारा जो निश्चय है या हमारा जो डर है अंदर, तो ये सब अंदर कहीं से आता है, अपने अंदर मन से। लेकिन अगर हम अपने चित्त को तो अगर हम अपने चित्त पर ध्यान रखें तो अपने संकल्पों में एक गहरा परिवर्तन आता है। तो जैसे मैं एक बार दादी जानकी से पूछ रही थी कि आपके चित्त पर क्या रहता है, कि आपका जो जो व्यवहार है वो इतना शक्तिशाली क्यों है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ भी पकड़ कर बैठी हूं तो उससे हमारे संकल्प पता चल जाता है कि किस तरह के संकल्प हमें आ रहे हैं। तो जिस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं वो हमारे चित्त से आ रहे हैं। तो लेकिन किस प्रकार के व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, तो व्यर्थ संकल्प आते कहाँ से हैं, वो मेरे चित्त से आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे अपने चित्त को बहुत ही साफ सुथरा रखना है और कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना है। कुछ कि अगर मैंने कुछ मेरे चित्त पर रखा है, अगर मुझे उससे दुख होता है तो वो भी मेरे संकल्प में आएगा। कि अगर हम नहीं करते तो हमारी धारणा है कि पास्ट पास्ट हुआ, सब कुछ हमें भूलना है, तो फिर वो धारणा नहीं रह पाती। तो हमें ये सोचना है कि ये परिवार है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम सबके कोई लक्ष्य है, तो उस वजह से हमें सब कुछ लेट गो करना है। तो चीजों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन कुछ किसी के बारे में पर्सनल ऐसे दिल में जैसे कि कुछ आत्मा है, वो अगर हमें हमें हमारे लिए विघ्न स्वरूप बनती है, हमें दुख देती है, तो हमें अपनी पवित्रता से उसको सोचना नहीं है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करना है। पवित्रता क्या है कि कुछ पकड़ के नहीं रखना है, हमें बाबा की याद में रहना, आत्माभिमानी स्थिति में रहकर जो भी हम करना चाहते हैं वो हमें करना है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ ताकि मैं और दूसरे नए कर्म बंधन नहीं बनाऊं। अगर मैं किसी को कुछ कहती हूँ तो किसी के लिए और मुश्किलात या और कार्मिक अकाउंट नहीं बनेंगे और फिर हमें आगे उनको और सेटल करने पड़ेंगे और फिर हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये हमारा ही फिर स्वभाव है। तो दीदी ने कहा कि
हमें सिंपल पर्सन बनना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है बातों को। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो बहुत ऐड करते हैं कि ये करना है, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे क्यों, क्या आगे क्या। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल चीजों को सिंपल रखें। तो एलिजाबेथ बहन ने कहा कि जैसे इसमें निश्चय भी आता है कि हमें अपने आप पर निश्चय होना चाहिए, कि अगर मुझे अपने आप पर निश्चय है तो मैं उस प्रकार से ही दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आती हूँ। तो मैं अपने आप को कैसे आईने में देखूं, कि अपने आप को समझूं कि मेरे पुराने संस्कार क्या है और कैसे हैं, और मेरी जो कमजोरी है उसको समझना, और बाबा जैसे मुझे देखते हैं वैसे देखना, ऐसे कैसे देखना। तो दीदी ने कहा कि मैं अपने आप को दो प्रकार के आईने में जैसे देखती, एक तो लौकिक प्रकार का आईना और दूसरा ज्ञान का। तो जब मैं अपलौकिक जो आईने में देखती हूँ, तो मैं कहती कि अरे बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बाबा मेरा आत्मा कितनी अच्छी है, मैं कितनी लवली हूँ। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने बारे में ये इतना अच्छा महसूस करती हूँ। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बाबा ने मुझे इतने कार्य के लिए चुना है। तो अपने आप से प्रेम करें, अपने आप पर मुस्कुराए भी आईने में देखकर, और खुद को प्यार करना है। कि कोई अगर आपको जो हेल्प करते हैं, जो आपके लिए चाय लेकर आते हैं, आप उनको उनको भी स्माइल दो, उनको भी प्रेम दो, और ऐसे बहुत प्रेम से दिन की शुरुआत करनी है। प्रेम युक्त होकर, हर्षित मुख से, खुश मिजाज होकर दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देना है। तो हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है। अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगी तो मैं दूसरों को भी प्रेम नहीं कर पाऊंगी। तो खुद से प्रेम करना है, और अपने अंदर वो प्रेम, वो हर्षित मुक्ता, वो उत्साह को बनाए रखना है, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। तो दीदी, आपने जो कहा, मुझे बहुत हंसी आ रही है कि आप खुद को ही आईने में देखकर दृष्टि देते हो, और आप खुद को ही ऐसे याद करते हो कि मेरी क्या विशेषता है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको कैसे ड्रामा पे इतना प्रेम और निश्चय आता है। कि तो दीदी ने कहा कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे आप ड्रामा पर थोड़ा सा संचय करते हो, ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन ड्रामा एक्यूरेट है। जब मैं कहती हूँ कि एक्यूरेट, अर्थात ड्रामा हमारे कर्म के अनुसार है, तो जो भी सेटलिंग होनी है वो तो होनी ही है। लेकिन एक चीज मैंने सीखी है कि ड्रामा को स्वीकार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो आदतें हैं वो हमें चेक करनी है, अंदर की या बाहरी आदतें चेक करना है। जैसे आज मैं सोच रही थी कि जो भी चीजें होती हैं, बातें होती हैं, अपने अपने देह के रिलेटेड जो भी होता है, वो सब अपनी आदतों से है। हम ये तो कहें कि ड्रामा है, लेकिन जैसे कि मैं जो भी एज में हूँ, अगर ये मैंने 60 वर्ष पहले अगर मैंने कुछ ध्यान रखा होता, तो मैं अभी 60 साल पहले नहीं जा सकती हूँ। तो मैं ड्रामा को स्वीकार करती हूँ कि ये सब मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं ये खा रही हूँ और ये ड्रामा है। तो ऐसा सही नहीं है कि हम जो करते हैं वो करते रहें और ड्रामा ड्रामा कर कर छोड़ दें। नहीं, पास्ट के लिए ड्रामा समझना है, लेकिन अभी हमें ध्यान देना है कि जैसे मेरे केस में मैं वॉक करूं, ज्यादा डाइट पर ध्यान दूं, एक्सरसाइज ज्यादा करूं, अपने शरीर का ध्यान दूं।
तो जैसे आज मेरे डॉक्टर जब मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे ऐसे प्रेरणा दी कि आपका शरीर और अच्छा हो सकता है, कि अब क्या करना है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो अपना शरीर और ज्यादा हमारी तबीयत नीचे जाती जाएगी। तो ड्रामा का ज्ञान ये भी है कि हम अपने अंदर परिवर्तन भी लाएं। परिवर्तन कि मैं जो भी करूंगी उससे मैं परिवर्तन लाऊंगी। मैं जो भी कर सकती हूँ ड्रामा को बेहतर करने के लिए मैं वो करूंगी, जिससे हम बहुत बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो चाहे शारीरिक तौर पे जो भी हुआ, मैं जहाँ पर हूँ, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाती हूँ। जो होना था जो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है अपने संपर्क में या अपने अपने शरीर को लेकर। तो मैं आज सुबह से ऐसे सोच रही थी। तो दीदी आपने बहुत अच्छा आज कहा, आज का पॉइंट कि ड्रामा को एक्सेप्ट करना और उसको परिवर्तन करना। एक्सेप्ट इसलिए करना कि एक गिफ्ट है, एक गिफ्ट है बाबा ने दी है, और उसको फिर परिवर्तन। और अगर हम ऐसे उसे स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर सरलता आएगी और ड्रामा में छुपा हुआ राज हम समझ पाएंगे कि ड्रामा में क्या गहराई से राज छुपा हुआ है, और उसको हम समझ सकते। तो दीदी ने कहा कि एक हमारे अंदर एक, अगर हम रियलाइज करते हैं कोई बात को तो वो भी, अगर जैसे कि हमारी कोई मिस्टेक होती है तो हम उसको समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उसको फिर हम आगे दोहराएंगे नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समझना, और अगर कुछ होता है तो उसको स्वीकार करना, उसको रियलाइज करना। तो दीदी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बरसा यही है शिव से मिलन मनाना, समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, बच्चों प्यारे बच्चों। बल्कि आपको मालूम है कि जब जापान से ये दादी जी, आनंद किशोर भाई और रतनमणि बहन आई तो मैंने बाबा को पत्र लिखा दिल्ली से कि हमारा ख्याल है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करें जब ये वहाँ से लौटे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे भले आप मद्रास में जाओ। इन्होंने मद्रास में बाई शिप आना था और मैं मद्रास में गया इनको लेने के लिए। जानकी दादी मेरे साथ गई क्योंकि उनके कोई लौकिक रिलेटिव मद्रास में रहते थे। तो फिर बाबा के पास जब मैं आया माउंट आबू में तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास कपड़े तो है नहीं, कोई कपड़े ले जाओ। तो यहाँ एक बहुत बड़ी पेटी रखी जाती थी, जैसे पहले लोगों को दहेज में मिलती थी ना, बहुत बड़ी पेटी लोहे की, उसमें कुछ पुराने कपड़े रखे रहते थे। तो बाबा ने कहा कि इसमें से जो तुम्हें पूरा आए तुम पहन लो। जो भाई वो बात बता रहे थे अभी कि वो ढीला ढाला पहन लिया, तो उसमें से एक कोई जीन की पैंट थी और एक कोई कमीज थी। वो मुझे पूरी तो आई नहीं, पैंट मेरे ख्याल में यहाँ तक आई होगी, लेकिन चूंकि भगवान का वरदान था, बाबा ने कहा था कि इसमें से ले लो, तो हमने सोचा इसी में ही सफलता है, जो मिल जाए ये भगवान का तो वरदान है, प्रसाद है। तो उसमें से मैंने एक दो पैंट्स और वो ले ली जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी थी,
जो मुझे अधिक से अधिक नीचे तक आ सकती थी वो भी मेरे ख्याल में जहाँ तक आनी चाहिए उससे 3-4 इंच ऊपर ही थी। अच्छा है कि घुटने तक नहीं थी तो वो मैंने ले ली। काफ़ी टाइम की पड़ी हुई थी ट्रंक में, बारिश वारिश में कुछ उनको जंग भी लगा हुआ था, उनको मुक्के मार मार के ठीक ठाक करके थोड़ा सा धोया और उनको हम ले गए। लेकिन वो ऐसी बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि मेरे ख्याल में जितने भी मद्रास के बहुत सारे प्रेस वाले थे वो आए, हमारी कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड की। और दादी जी और आनंद किशोर भाई और रतन मोहिनी बहन तो कॉन्फ्रेंस का जो हमने टाइम दिया हुआ था वहाँ पहुँचे भी नहीं। उनकी शिप में कस्टम्स वालों में काफ़ी टाइम लग गया उनका, तो आखिर मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बिहाफ पर अटेंड करके वो कर दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि आज हम जो साधनों के पीछे जाते हैं, लेकिन अगर हमारी स्थिति ठीक हो और बाबा के उसमें फेथ रख के हम कार्य करने चलते हैं तो हम देखते हैं कि कार्य में सफलता देने वाले बाबा हैं, वो सफल हो जाता है। उन प्रेस वालों ने भी देखा होगा कि ये तो कार्टून की तरह का आदमी है, इसने पैंट भी ऐसी पहनी हुई है, लेकिन हो सकता है उन पर यह प्रभाव पड़ा हो कि ये बड़ा सिंपल लाइफ का आदमी है। वट एवर इट इज, ये कुछ थोड़ा सा उन्होंने जो बातें याद दिला दी मुझे वो मैंने आपके आगे रखी। अब आज जो क्लास का विषय है, मैंने ये सोचा कि मैं आपके सामने क्या बात कहूँ। मेरे से पहले बहुत सी बहनें, दादी जी भी स्वयं 1.5-2 घंटा सब आपको बहुत सी बातें बता गई हैं, तो मुझे लगा कि ज्ञान तो सारा ही आपको बता दिया गया है। जो बताने योग्य बातें हैं, बहुत सी बातों की ओर आपका ध्यान खिंचवा दिया गया है। तो मैंने ये सोचा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो सिंपल बातें होती हैं, सरल, ज़रूरी होती हैं वो कई दफ़ा, लेकिन होती बहुत सरल है, देखने में बहुत ऑर्डिनरी होती हैं, लेकिन उनकी तरफ मनुष्य का ध्यान कई दफ़ा खिसक जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वही बातें आपको कह डालूं। वो बातें जो आप सुनेंगे आपको लगेंगी ऑर्डिनरी, सिंपल, लेकिन आप देखेंगे कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अगर आप उन पर गौर करेंगे। तो मैंने सोचा कि उनके विषय में मैं आपका ध्यान खिंचवाऊं। मेरे जो आज क्लास है उसका टॉपिक क्या है, वो है परिवर्तन की कला। परिवर्तन की कला, क्योंकि 16 कला संपूर्ण की बात हम कहते हैं, लेकिन 16 कला संपूर्ण भी तभी बनेंगे हम जब हमें पहले परिवर्तन की कला आती होगी। अगर परिवर्तन की कला नहीं आती होगी तो 16 कलाएं भी आएंगी नहीं। उनका भी जो आधार है वो ये परिवर्तन की कला है। आप देखेंगे कि बहुत दफ़ा हमें ये कहा जाता है कि हम बाप समान स्थिति को प्राप्त करें। तो अभी की जो हमारी स्थिति है और बाप समान की जो स्थिति है, उसके बीच में जो गैप है, वो गैप कैसे पूरा होगा? जब परिवर्तन आएगा। Multi-million-fold fortune and blessings. अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 24 जून 1972। एवर रेडी बन अंतिम समय का आह्वान करो। वह रिवाइज कोर्स करते भी पुराना लगता है व नया लगता है। नयों के लिए तो कई बातें होंगी, लेकिन जो पुराने हैं वह फिर से रिवाइज कोर्स से क्या अनुभव करते हैं?
नया लगता है, क्योंकि ड्रामा अनुसार रिवाइज क्यों हुआ। यह भी ड्रामा की नोंद थी। रिवाइज क्यों कराया जाता है? अटेंशन कम हो जाती है, स्मृति कम होती है, तो बार बार रिवाइज कराया जाता है। तो यह भी रिवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिकल में नहीं आए हो। जितना सुना है, जितना सुनाते हो, उतनी प्रैक्टिकल में पावर नहीं भरी है। इसलिए पावरफुल बनाने के लिए फिर से यह कोर्स चल रहा है। पुरानों का पावरफुल बनाने के लिए और नयों को पावरफुल बनाने के साथ साथ अपना हक पूरा मिलने के कारण भी यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो अब इसी कमी को भी भरने के लिए अटेंशन को बार बार रिवाइज करना। तो रिवाइज कोर्स से जो संस्कार और स्वभाव परिवर्तन में लाना चाहते हो, वह परिवर्तन में आ जाएंगे। अच्छा, यह तो बीच में पेपर हो गया। पहली जो बात पूछ रहे थे, सहज युक्ति कौन सी है, जो रिवाइज कोर्स में भी बहुत रिवाइज हो रही है। वह है अमृत वेले अपने आप से और पाप से रूहिहान करना, व अमृत वेले को महत्व देना। जैसा नाम कहते हो, वैसे ही उस वेला को वरदान भी तो मिला हुआ है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आज तक के यादगार में भी वेला को देखते हैं ना। यहाँ भी पुरुषार्थ के लिए, सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला कौन सी है? अमृत वेला। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए, यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर फाउंडेशन कमजोर व साधारण डालेंगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। अच्छा, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।